جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے ہولی اسپرٹ روح القدس. تو اس کا جو آج کا سرمن ہے مسا کا امتحان ٹیسٹ آف انوائنٹنگ. یہ تعلیم نہایت اہم ہے. اس کو لیجئے غور سے سنیے اور خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 4 باب 1 تا 11 آیتیں ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے عبار 21 باب اس کی 10ویں آیت. اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے. وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جوائے بولے آمین. آئیے روح القدس کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. پریز گاڈ ہاللیلویا. میں سمجھتا ہوں روح القدس کے لیے آپ نے بہت کم تالیاں بجائیں. زوردار تالیاں. پریز گاڈ ہاللیلویا. شکریہ سر بیٹھ جائیں. تھینک یو گاڈ بلیس یو. آئیے خدا کے نام کو ہم جلال دیں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے. بڑی خوبصورت باتیں مسا کا امتحان ٹیسٹ آف انوائنٹنگ. اور جیسا کہ مسا لاسٹ سنڈے کا سرمن جو ہے وہ ہم نے سنا خدا کے کلام میں سے اور پرانے نامہ کے اندر تیل کے ساتھ مسا کیا جاتا تھا. وہ 5 سپائسز 5 مسالہ جات اور گندی ہوئی حکمت کے ساتھ ایک آئل تیار کیا جاتا تھا. اس سے کاہن کو پھر کاہن کے سردار کاہن کے بچوں کو اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی کو اور پھر اس کے بعد بادشاہ بنی اسرائیل کا جو مسح کیا جاتا تھا. لکھا ہے کہ وہ پاک رہے اسرائیل کی کنواری سے شادی کرے اور پھر کیا کرے پاکیزگی کے اندر اپنی خدمت کو سر انجام دے. روح سے مبعوث ہو کر خدا کے کام کو جو خدمت دی گئی ہے نہایت پاکیزگی کے ساتھ خداوند کی خدمت کو سر انجام دے. اپنے آپ کو ناپاک کرنے نہ پائے ایک ایماندار بلیور کیونکہ یسوع کے لہو سے وہ پاک کیا گیا ہے. اور لکھا جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں خطائیں کرتے ہیں وہ اچانک لکھا بار بار کھوپڑی کو خدا چیر ڈالتا ہے. پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے پرانے نامہ کے اندر جب وہ گناہ ہوتا تھا تو پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی خدا کی حضوری میں. مگر ایماندار بلیور جو آج کا ہے اس کے لیے پرانا نامہ تو نہیں ہے. غلطی ہو سکتی ہے مگر وہ فوراً اپنے گناہ کا اقرار کرے پاکیزگی کے اندر آئے خدمت کے اندر بحال ہو. پرانے نامہ کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا. نئے نامہ کے اندر موقع ہے. آج ہم پرانے نامہ کے مطابق تو نہیں زندگی بسر کر رہے مگر نئے نامہ کے اندر ایک ایماندار غلطی ہو تو پھر اقرار کر کے بحال ہو سکتا ہے. مگر جب خدمت ملی ہے روح القدس اس کی زندگی کے اندر ہے تو پھر کیوں وہ غلطیاں کرتا پھر ذرا سی بھی غلطی اس کی زندگی کے اندر نہ آنے پائے. ایک ایماندار بلیور پاکیزگی کے اندر اپنی لائف کو بسر کرے. کیوں
दिया है भाई, जब चलना ही खुदा के साथ है, जब यीशु मसीह के लहू से पाक किए गए हैं, रूह कुदस ने मसा कर दिया है, रूह कुदस बसता है, तो थोड़ी सी भी गलती क्यों एक ईमानदार बिलीवर की जिंदगी में आने पाए। इसलिए एक ईमानदार बिलीवर जो है वो पकीजगी के अंदर खुदावंद की प्रोसेस करे। आमीन। जरा सा रत्ती भर भी गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर ना आए। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुनिए गौर से जो मैं बातें बताने लगा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि हारून काहिन और फिर मूसा, उनको मसा के तेल से मसा किया गया, उसके बच्चों को भी। और लिखा है कि उसका हारून काहिन जो था वो खिदमत का काम कर रहे थे, उसके बच्चे भी। और लिखा है उनके बच्चे जो थे, दो बेटे नदब अबीहू, ये दो बेटे थे उसके। और लिखा है हैकल के अंदर खिदमत का काम कर रहे थे। और लिखा है जब वो कुर्बानियां चढ़ा रहे थे तो लिखा है कि उन्होंने ऊपरी आग जला दी सोखती कुर्बानी के ऊपर। ऊपरी आग यानी जो घरों के अंदर आग जल रही थी। हालांकि उनको खिदमत का पता था, उन पर मसा का तेल डाला गया, खिदमत के अंदर थे, वो जानते थे खिदमत को कि खिदमत करनी है, इस तरीके से करनी है। मगर उनकी जिंदगी के अंदर जब मसा का टेस्ट हुआ, जब खिदमत के लिए कोई बुलाया जाता तो फिर मसा का टेस्ट होता है, यानी खिदमत का टेस्ट खुदा लेता है, रूह कुदस लेता है। तो लिखा नदब अबीहू हारून के बेटे, लिखा उन्होंने ऊपरी आग जला दी, यानी उन्होंने आग जो थी कुर्बानी के ऊपर ये आसमान से आती थी, हेमन से आती थी, जो कुर्बानियों को जलाती थी। मगर उन्होंने ऊपरी आग जला दी और फिर लिखा आसमान से आग आई और लिखा उन दोनों बेटों को, हारून के दोनों बेटों को, नदब अबीहू को, वो लिखा खा गई, वो उसी वक्त कोयला बन गए। तो देखिए वो खिदमत के अंदर थे। और लिखा है उस शख्स पर जब रूह कुदस मसा करता है तो फिर लिखा उस पर मसा के तेल का ताज रखा जाता है। आमीन। ये जो मसा के अंदर मैं खिदमत कर रहा हूं, मेरे सर के ऊपर मसा का ताज रखा गया है। इसी तरह आप लोग जो हैं, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके सरों के ऊपर मसा का ताज रखा हुआ है। आमीन। ये ईमान से आप देखें, आपके जो सर पे ताज रखे हुए हैं, आमीन, ईमान से देखिए, एक ईमानदार बिलीवर जो यीशु के लहू से धुला है, पाक ने उसे मसा किया है, उसके सरों पर मसा का ताज रखा हुआ है। हालेलुया। जरा खुद से तालियां तो बजाइए इस मसा के ताज के लिए। ये ईमान से देख सकते हैं, मेरे सर पर मसा का तेल, मेरी खिदमत से आपको पता चलेगा ये ताज मेरे सर के ऊपर है। इसी तरह आपकी खिदमत से पता चलेगा कि आपके ऊपर मसा का ताज रखा हुआ है। ये मसा का भाई ताज आपके सरों पर है। आमीन। ताज जो होता है वो शहजादे और शहजादियों के सरों पर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसने शहजादे और शहजादियां बनाया है। और कोई गुनाह करता फिरे, कोई नापाकियों के अंदर लाज पसंद करे, कोई बार बार गुनाह करता रहे, जरा सी भी गलती है कि ईमानदार के अंदर, अभी अब देखें उनके बच्चे हैं, अभी छोटी सी उनसे गलती हुई है, उन्होंने ऊपरी आग जला दी। भाई तुम्हें खिदमत के लिए बनाया, खिदमत का ताज, मसा का ताज तुम्हारे सरों पर है, और कोई सुस्ती कर जाए, कोई अपनी खिदमत के अंदर ढीला ढाला नजर आए, कोई ताबे न रहे, जैसे कहा गया है हुक्म को तोड़ डालते हैं वो लोग। लिहाजा ये मसा का जब टेस्ट हुआ तो नदब अबीहू जो हारून के बेटे थे, वो क्या हुए, उनकी वहां ही डेथ। और लिखा है हारून और मूसा जो थे हैकल के अंदर जब खिदमत कर रहे थे, खुदा ने कहा कि कोई खादम जो है खिदमत करता हुआ नजर जो आता है, खिदमत कर रहा है, जिस पर मसा का ताज है, वो कोई अपने आप को नापाक करने ना पाए, निजस ना हो, यानी वो मुर्दे को ना छुए। तो आप देखिए वो खिदमत के अंदर थे, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने रिश्तेदारों से कहा कि इन्हें दफना दो, खुद नहीं निकले। हालांकि मसा का देखे उनके बच्चे, अपने बच्चे नदब अबीहू, आग उनको खा गई, वो उनकी डेथ हो गई, मगर हारून और काहिन लिखा दोनों खिदमत करते रहे, वो बाहर नहीं निकले, वो जनाजे पे नहीं गए। इसलिए खुदा ने कहा कोई खिदमत के अंदर आया है तो फिर कोई अपने माँ बाप या अपनों की कोई डेथ हो जाए, मुर्दे को छू कर अपने आप को नजस ना करे, वो खिदमत के अंदर है। मसा का तेल, खिदमत उनको दी गई है, वो खिदमत का काम करे। तो लिखा है कि वो अंदर, उनका जब मसा का टेस्ट हुआ तो वो बाहर नहीं निकले, खिदमत करते रहे। आमीन। ये मसा का जो टेस्ट हुआ, हारून और मूसा जो थे वो मसा के टेस्ट में कामयाब हुए। आमीन।
इसी तरह की ईमानदार जब उसका टेस्ट लिया जाए, रूह कुदस टेस्ट लेता है, तो वो उसके अंदर भाइयों वफादार हो, कायम रहे, गालिब आए, शैतान की कुफ्तों पर गालिब आए, दुनिया की नापाकियों पर गालिब आए, पाकीज़गी के अंदर एक ईमानदार बिलीवर अपनी लाइफ को बसर करे। आमीन। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, बनी इसराइल का पहला बादशाह साउल बादशाह, लिखा है शमूएल ने आकर उसे मसा किया। आमीन। मसा का तेल उस पर अंडेला, उस पर मसा का तेल जो तेल का ताज था, और लिखा है कि खुदा के कलाम लिखा है जब वो नबियों में से गुजरा, जब मसा का तेल उस पर अंडेला गया, तो नबी ने बता दिया कि जब तू नबियों में के दरमियान में से गुजरेगा तो फिर तू बदल कर कुछ और ही हो जाएगा, यानी तू तो आम सा बंदा है। मगर उस वक्त लिखा जब उसे उस पर तेल अंडेला गया, वो नबियों में से गुजरा, तो लिखा बदल कर बादशाह बन गया। हालेलुया। उस पर मसा का तेल अंडेला गया, बादशाह होने के लिए, बादशाह की खिदमत के लिए उसे बुलाया गया। मगर बनी इसराइल का पहला बादशाह मगर अपनी मसा के इम्तिहान में नाकाम बादशाह था। खुदा के साथ नहीं चला, खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने लाइफ नहीं बसर की। जब खिदमत दी गई तो उस खिदमत के मैदान के अंदर वो नाकाम बादशाह हुआ, पहला बादशाह। लिखा खुदा ने उससे कहा, नबी ने उसे कहा, ये जब तू कुर्बानी गुजारने का शुक्रगुजारी की तो मैं जब आऊंगा तो फिर कुर्बानी गुजारी जाए। उसने अपने सीनियर की कोई कदर ही नहीं की, तो खुद ही से ही कुर्बानी कर दी। मसा के इम्तिहान में फेल हो गया। इसी तरह एक बिलीवर ईमानदार जिसे खिदमत मिली है, रूह कुदस ने मसा किया है, वो सीनियर की क़यादत करे, यानी सीनियर के ताबे रहकर काम करे खिदमत का। तो आज तो लीडर जो होते हैं वो वही सीनियर के ताबे नहीं रहते हैं, वो तो भाग जाते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी हथकर्मियां उनकी जिंदगी के अंदर आती है, जैसा कहा जाता है वैसे करते ही नहीं है। कई तो कह देते हैं हम करेंगे मगर करते नहीं है, तो ठीक होते हैं। मसा का जब टेस्ट होता है तो वो नाकाम हो जाते हैं, साउल बादशाह की तरह नाकाम होते हैं। और फिर आगे जब खुदा ने कहा जब तू अमालिकियों को मारेगा, उनके साथ जंग करेगा, तो तूने उनको कत्ल करना है, क्योंकि वो नापाक नस्लें हैं, फॉलन एंजल की औलाद हैं, शैतानी लोग हैं, खुदा से दूर लोग हैं। तूने उनको छोड़ना नहीं, उनको मारना है, किसी चीज को नहीं छोड़ना, उनके जानवरों को तूने मारना, हर चीज नापाक चीजों को खत्म करना है। मगर साउल बादशाह ने क्या किया? खुदा के हुक्म को ना माना और लिखा खुदा के हुक्म को तोड़ा। उसने बड़ी मोटी मोटी जो भेड़ें थी वो भी अपने मुल्क के अंदर इसराइल में ले आया। खुदा ने कहा उसको मारना है, फिर बादशाह को मारना है, तो बादशाह के साथ यारियां बनाकर उस बादशाह को अपने मुल्क में ले आया। खुदा उससे नाराज हुआ। बनी इसराइल का पहला बादशाह मसा के इम्तिहान में नाकाम रहा और खुदा उससे नाराज हो गया। और जब नाराज हुआ तो फिर लिखा उस पर नापाक रूह उसकी जिंदगी के अंदर आ गई। पहले तो पाक रूह थी, लिखा नापाक स्पिरिट बदबू उसकी जिंदगी के अंदर जोर से नाज़िल होती थी। फिर वो भाइयों आज भी दुनिया के अंदर जो खिदमत दी जाती है, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, पाकीज़गी में चलते हैं, जब वो मसा के इम्तिहान में गालिब नहीं होते, फिर खुदा को छोड़ देते हैं, नापाक हो जाते हैं, खुदा को छोड़कर दुनिया में निकल जाते हैं, तो फिर बदरूहें उनकी जिंदगी के अंदर, नापाकियां उनकी जिंदगी के अंदर, डेविल उनकी जिंदगी के अंदर काम करता है, इब्लीस बदरूहें उनकी जिंदगी के अंदर काम करती हैं। लेकिन साउल बनी इसराइल का बादशाह, उसके अंदर बुरी रूह फिर आ गई। बनी इसराइल का पहला बादशाह जो था वो अपनी खिदमत में मसा के इम्तिहान में नाकाम रहा। और आप देखिए दाऊद जो था बादशाह की खिदमत के लिए क्या कर मसा कर, क्योंकि पहला बादशाह साउल जो है वो मसा के इम्तिहान में नाकाम रहा है, खुदा से दूर, उस खुदा के हुक्म में नहीं है। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा फिर उसकी जगह पर दाऊद को क्या किया गया? मसा किया गया। दाऊद को क्या किया? लिखा जब नबी शमूएल उनके घर में गया, दाऊद के घर में, तो उसके भाई जो थे जंगजू थे, बड़े बड़े कद्दावर थे, वो पूछ लेगा खुदावंद ये है, बारी बारी उसके सामने से गुजरे। तो खुदा ने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। खुदा ने कहा शमूएल तू इंसान की जिसामत पर, इंसान के कद काठ पर नजर करता है, मगर मैं इन चीजों पर नजर नहीं करता हूं। आमीन। मैं तो दिल पर नजर करता हूं। आइए जरा खुदावंद के जलाल के लिए। भाई आप कद्दावर है, छोटा कद है, मीर है, गरीब है, जिस हालत के अंदर भी खुदा आपसे प्यार करता है। जब उसने चुनना है आपको चुन लेता है। आमीन।
اس نے کہا کوئی اور بھی ہے؟ سارے گزر گئے، کوئی بھی. خدا نے کہا یہ بھی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو پھر داؤد کے باپ سے سیموئیل نے پوچھا کوئی اور بھی ہے؟ خدا نے کہا اس سے پوچھ کوئی اور ہے تیرا بیٹا. جب اس نے پوچھا کہ کوئی اور ہے، اور بھی تیرا بیٹا؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ڈیوڈ، داؤد. وہ میری بھیڑ بکریاں چلاتا ہے، جنہیں بلا لے اسے. اور جب وہ آیا تو پھر خدا نے کہا یہی ہے، اور اس نے مسا کا تیل اس پر ڈال دیا. اسے پھر جانے دیا میدان کے اندر، جنگ کے اندر جانے دیا. باپ نے کہا جا اپنے بھائیوں کا کھانا تو پہنچا کے آ. اب پہلا واقعہ سٹارٹ پر ہی جب اسے مسا کیا گیا تو لکھا ہے کہ وہ جنگ کے اندر گیا روٹی لے کر اپنے بھائیوں کے لیے. مسا کیا ہوا بادشاہ تھا داؤد، اور لکھا ہے کہ وہاں پر جاتی جولیت آ گیا. وہ قوم پر لعنت بھیجنے لگا، خدا پر لعنت بھیجنے لگا. اور لکھا داؤد نے کہا یہ کون ملعون شخص ہے، زندہ یہوہ خدا کے نام پر کفر بولتا ہے. اور ایک طرف سول بادشاہ ہے، ناکام بادشاہ جو اپنے مسا کے امتحان میں ناکام رہا. پھر ایک طرف فوجیں ہیں بنی اسرائیل کی، اور دوسری طرف جاتی جولیت ہے، دشمن ہے. اور ایک طرف مسا ہوا بادشاہ داؤد بادشاہ ہے. ہلیلویا. اب یہ مسا کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے. تو پھر لکھا داؤد نے ایک پتھر لیا اور لکھا جاتی جولیت کے سر پر مارا، اس کا سر پھوڑ دیا. اور جب وہ گر گیا تو اسی کی تلوار سے اس نے اس کا قتل کر دیا. ہاللویا. اس نے مسا کا زور حاصل کر کے، یہ پہلا ٹیسٹ تھا اس کا، دشمن کو اس نے مارا. پہلے وہ شیروں ریچھوں کو مارتا تھا. آمین. لکھا جب اسے مسا کیا گیا تو روح القدس زور سے اس کی زندگی پر نازل ہوا. پھر اس نے جاتی جولیت کو مارا. آمین. اس نے کہا کون ہے یہ نامختون جو میرے خدا کے خلاف بول رہا ہے؟ اور آج ایک ایماندار بلیور جس کو روح القدس نے مسا کیا، اپنا زور دیا ہے، اپنی خدمت دی ہے، اس سے کوئی جاتی جولیت نہ مرے، کوئی نامختون بدرو نہ نکلے، کوئی وہ دعا نہ کرے، کوئی وہ روزے کے اندر نہ شخص رہے، تو یہ شرم کی بات ہے اس سے ایک بدرو نہ نکلے. شیطانی قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے ہمارا. تو بھائیو جب داؤد تھا تو اس نے جو جاتی جولیت کو مارا. ہماری زندگی میں بھی یہ زور دیا گیا ہے، ہم مسا کیے گئے ہیں، خدمت کے اندر ہے، یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، لہذا نامختونوں کو ہم نے بھگانا ہے. ہاللویا. ناپاکیوں کو، شیطان کی قوتوں کو، ابلیس کی تاثیروں کو بھگانا ہے. تو بھائیو ہم مسا کیے گئے ہیں. جب محسوس کیے جاتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو روح القدس ہمیں مسا کرتا. پھر مسا کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور داؤد اپنے اس مسا کے ٹیسٹ میں کامیاب ہوا. آمین. پھر جب تخت پر بیٹھ گیا تو اس کی زندگی کے اندر بے شک تھوڑی غلطی ہوئی، اس کی زندگی میں گناہ آیا. اس نے اپنی فوج کو گنا. خدا نے کہا میں یہوہ خدا جنگ میں لڑتا ہوں، تجھے جتاتا ہوں، تو اپنی فوج کو گننا شروع کر رہا ہے کہ میری فوج زیادہ ہے. گناہ کیا، وبا چلی، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا، اس سے غلطی ہوئی. پھر ہتھیوریا کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کیا، اور پھر ہتھیوریا کو مروا دیا. مگر پھر جب اس نے معافی مانگی، خدا نے اسے معاف کر دیا. مگر غلطی کیوں کرے کوئی جب مسا کا تاج سر پر رکھا ہوا ہے؟ اسے یہ غلطی، اس نے جب معافی مانگی دوبارہ پھر وہ ان چیزوں سے نکل گیا. پھر اس کی زندگی میں گناہ نہیں آیا، پھر وہ خداوند کے ساتھ سموتھلی چلنا شروع ہو گیا. لہذا ایک ایماندار سے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسا کا تاج اس کے اوپر تھا، لیکن کر گیا. مگر پھر معافی مانگ کر بحال ہوا. وہ چانس ہے، مگر چانس کیوں دیں آپ خدا کو جب کرنا ہی خدا کا کام ہے، خدمت کے لیے بلائے گئے، یسوع کا لہو سے پاک ہے. تو پھر ناپاکی کیوں آئے، گناہ کیوں آئے؟ اس لیے یسوع مسیح لکھا جب بپتسمہ لے کر لکھا ہے کہ باہر آیا تو لکھا کبوتر روح القدس مسیح پر آ کر ٹھہر گیا. اب دیکھیے مسا یسوع مسیح کو کیا گیا ہے تو لکھا فوراً یسوع مسیح کا ٹیسٹ شروع ہونے لگا. تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اسے پتا مسا کا ٹیسٹ بھی ہے. فوراً لکھا کہ بیابانوں میں چلا گیا، یردن کے بیابان کے اندر، اور لکھا کہ روزے کے اندر ٹھہر گیا. دعا اور روزے کے اندر 40 دن 40 رات. لکھا ہے یسوع مسیح کچھ نہیں کھا رہا. شیطان نے 40 دن پورا زور لگا دیا ہے کہ اس کی ازمائش کروں، اسے گمراہ کروں. وہ کہتا ہے یہ خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ تو پاکیزگی میں 40 دن 40 رات خدا کے ساتھ ہی باتیں کری جا رہا ہے. اسے چانس نہیں ملا. 40 دن 40 رات
उसे एक लम्हा भी नहीं मिला शैतान को कि वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाए, टेस्ट करे। लिखा 40 दिन के बाद यीशु को भूख लगी। अब वो देखने लगा इधर उधर, क्या खाऊं क्या करूं। अब टेस्ट शुरू होने लगा मसा का। आमीन। लिखा शैतान आजमाने वाले ने लिखा पास जाकर क्या कहा, उसे कहा इन पत्थरों से क्या है कि रोटियां, क्योंकि शैतान को पता था कि बनी इसराइल जब बियाबानों के अंदर थी तो ये पत्थरों से पानी निकालते थे शैतानों से। उसने कहा अब इन पत्थरों को रोटी बनवाते हैं। वो कहने लगा इन पत्थरों से क्या कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। हालेलुया, हालेलुया। और भाइयों ये देखें, रोटी पर बात होने जा रही है। रोटी पर को पूरा ना कर पाए, वो इस रोटी की खातर खुदा की हजूरी को छोड़ दे, इतवार की इबादत को छोड़ दे, फेलोशिप को छोड़ दे। ये भाइयों अगर वो छोड़ देगा उसे संभाल लेंगे। मगर क्यों खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या कहा, खुदावंद अपने खुदावंद की आजमाइश ना कर। भाई ये भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ये भी लिखा है कि अपने खुदा की आजमाइश नहीं करना। तो कोई आजमाइश करता फिर मैं देखता हूं खुदा ऐसे करता है, ये नहीं ऐसा करता, कोई ना करने पाए। बाइबल में लिखा ऐसा कोई करने की जरूरत ना करे एक ईमानदार बिलीवर। कोई कहे कि मैं सुपरमैन बन के ऊपर से नीचे आ रहा हूं, नीचे गिर रहा हूं, भाई सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, खोपड़ी फट जाएगी आपकी। कोई खुदा को आजमाने ना पाए, सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। खुदा भाइयों अगर आप अचानक गिर गए तो खुदा संभालेगा। बोलिए आमीन। खुदा के जलाल की जरूरत पड़ जाएगी। और भाई अगर कोई गाड़ी भी आपको टकरा जाएगी आपको कुछ नहीं होगा, खुदा आपको फेवर करेगा, संभाल लेगा। मगर कोई आजमाने के लिए अपने आप को बुलंदियों से नीचे गिराए तो फिर बड़ी खुदा के कलाम लिखा आजमाइश नहीं की जा सकेगा। खुदावंद की आजमाइश नहीं करनी, लिहाजा लिखा है कि फिर यीशु मसीह को लिखा है कि वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आज शैतान बुलंदियां ही हमें दिखाता है, हर बंदे के ख्यालात बुलंद भी है। मैं फलां फलां नासा के अंदर तो मेरा ही घर हो, यहाँ कहते हैं भाई अमेरिका के अंदर जा रहा हूँ, फलां मुल्क के अंदर जा रहा हूँ, बस ऐसे ही बस बुलंद बड़े बड़े ख्यालात बांधते हैं लोग। और लिखा कि मसीह को भी लिखा कि पहाड़ के ऊपर बुलंदियों के ऊपर ले गया और क्या कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है, मंसूर है, अनॉइंटिंग वन, मसा हुआ है, खिदमत तुझे मिली है, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर। कहने लगा मुझे सजदा कर, ये शानो शौकतें, ये बादशाहियां जो दुनिया के अंदर नजर आ रही है मैं तुझे दे दूंगा। ये शानो शौकतें, बादशाहियां, तू ऐसे ही यर्दन के जो है वो बियाबानों के अंदर, यर्दन के जंगल के अंदर ऐसी भूखा मर रहा है। ये देखो बादशाह ने ताज पहने हुए हैं, इधर आ मेरे पास, ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। योना की इंजील के अंदर लिखा है ये सारी दुनिया की चीजें जो है शैतान के कब्जे में कर दी गई है। ये फना होने वाली चीजें ना, ये शैतान के हैंड ओवर कर दी गई है। ये दुनिया के अंदर ईमानदार प्रिय को वो बादशाही दिखाता है। दुनिया की ऐशो-इशरत, दुनिया की मौजें, दुनिया की रंगीनियां, ये सब शैतान के हाथ में, वो ईमानदार को भी ऐसे दिखाता है। बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात, आज मैंने वहां जाना है, आज मैं ऐसे क्या करने का, बड़े बड़े ख्यालात, आज मैं डिफेंस में गा रहा हूं, उससे भी ऊपर कोई गा रहा है तो फिर वहां भी चला जाऊंगा। और ये शैतान की तरफ से है। यीशु मसीह को उसने बादशाहियां दिखाई, उसे तू यहां भूखा मर रहा है, आ तुझे दुनिया की बादशाही तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो, तो क्या हुआ, वो क्या हो गया, भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा अब मैं जो बात कहने लगा जुमला को सुन लीजिए। यीशु मसीह ने उसे कहा भाग जा शैतान, मुझसे दूर हो। तो आपने जैसे तालियां बजाई हैं, जब मसा के तीनों टेस्ट हो गए तो वहां पर करीबी तमाम जो फरिश्ते थे वो खड़े थे, वो देख रहे थे आज इम्तिहान चल रहा है, यीशु मसीह का टेस्ट होगा मसा का। तो फरिश्ते वहां पर खड़े थे, जैसे आपने तालियां बजाइयां हैं उसी तरह फरिश्तों ने भी तालियां बजाई। आप तालियां बजाइए जरा, हालेलुया, हालेलुया। फरिश्तों ने भी तालियां बजाई जब वो इम्तिहान में पास हो गए यीशु मसीह। और फिर क्या, फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे, खिदमत करने लगे। बोलिए फरिश्ते क्या करने लगे,
खिदमत करने लगे। तो खिदमत क्या है? नहीं, जब वो पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ से नीचे उतारने में फरिश्तों ने उसकी हेल्प की होगी, उसे लेकर उठाकर नीचे लेकर आए। खिदमत क्या की कि जैसे लिखा है कि यीशु मसीह को नीड है, भूख की है। लिखा है कि एक जगह पर एलिया को फरिश्तों ने आकर खाना तैयार करके दिया। तो फिर लिखा है यीशु मसीह के लिए पकवान बनना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो गालिब आया है। लिखा फरिश्तों ने आकर लिखा है कि उसके लिए भाइयों खाने बनाना शुरू कर दिए। आमीन। जो नीड थी फरिश्तों ने फिर पूरी की। आमीन। इसी तरह एक ईमानदार बिलीवर चले खुदा के साथ, रोटी देगा, खाने को देगा, फरिश्तों को भेजेगा, जॉब देगा, कारोबार देगा। और अगर कोई मसा के इम्तिहान में कामयाबी ना हो, नाकाम हो साउल की तरह, तो फिर बदरूही आएगी, शैतानी कूदते उसकी जिंदगी के अंदर आएगी। क्राइस्ट क्योंकि मसा के इम्तिहान में कामयाब हुआ है, आसमान से फरिश्ते आकर फिर वही हर चीज पूरी कर रहे हैं। इसी तरह की ईमानदार बिलीवर मैं और आप खुदा के साथ चले तो फिर रोटी की कमी नहीं होगी। हर चीज खाने को देगा, अच्छी से अच्छी चीज देगा, जो मांगेगी खुदावंद देगा। आमीन। लेकिन एक ईमानदार खुदावंद के साथ चले, ये टेस्ट के अंदर कामयाब तो हो। खिदमत के अंदर मसा का जो टेस्ट होता है, इसमें कोई जो है वो गालिब तो आए। तो इसी तरह पलूस रसूल जो था, लिखा है कि जब उसे लिखा है कि ईमाल की किताब के अंदर लिखा है कि जब रसूलों ने उस पर हाथ रखे तो पलूस और सलास को खिदमत के लिए चुना गया। तो रूह कुदस ने कहा पलूस और सलास को खिदमत के लिए चुन लो। लिखा जब उन पर हाथ रखे गए तो लिखा पलूस रसूल भी लिखा है कहां पर चला गया? फौरन जो था वो जंगलों के अंदर चला गया। आप देखिए कि वो जंगलों के अंदर चला गया फौरन। बाइबल में लिखा है कि वो फौरन चला गया वहां 3 साल तक वहां खुदा की हुजूरी में रहा पलूस रसूल। यही कि फौरन उसने खिदमत शुरू कर दी। जब उसे मसा किया गया, मखसूस किया गया, तो फौरन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वहां पर चला गया। जैसे यीशु मसीह यरदन के जंगलों के अंदर गया, इसी तरह लिखा है कि वो फौरन उस तन्हाई की जगह पर चला गया और वहां 3 साल तक सीखता रहा। किसी ने नहीं सिखाया, खुदा से बातें करता रहा। जैसे यीशु मसीह रोजे के अंदर दुआ करता रहा 40 दिन 40 रात, इसी तरह पलूस रसूल मिलकर 3 साल तक वो खुदा से बातें करता रहा, तालीम लेता रहा, ताकि दुनिया के अंदर जब खिदमत करे, खिदमत का काम करे। तो अभी तो भाई खिदमत शुरू नहीं हुई, खिदमत से पहले रूह कुदस जो है गाइड करता। वो 3 साल तक लिखा है कि वहां पर बियाबानों के अंदर रहा, यानी खुदा की हुजूरी में रहकर उसने सीखा। इसलिए वो कहता है ये बात मुझे खुदावन की तरफ से पहुंची। आमीन। ओ भाई डायरेक्ट खुदा से तालीम लेता रहा, रूह कुदस गाइड करता रहा, मसीह से वो बातें करता रहा। तो फिर इसलिए कहता ये खून और गोश्त से बात नहीं की, वो कहता खून और गोश्त यानी मैंने नहीं की, ये रूह कुदस ने की है। कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, वो कहता है कि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है, डायरेक्ट भाइयों खुदावन से पहुंची। तो कोई खुदा के साथ चले, खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, खुदा कलाम की गहरे भेद देता है। मसा के टेस्ट में कामयाब तो हो, खुदा के साथ वफादारी के साथ चले, पाकीज़गी में चले, तो फिर खुदा के गहरे भेद। और जब पौलुस रसूल ने फिर खिदमत शुरू की तो फिर सारे यूरोप के अंदर उसने सारे यूरोप को बदल दिया, क्योंकि मसा के टेस्ट में वो कामयाब हुआ। इसी तरह खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, 2 बातें और करूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है जब शमौन पतरस जो था, उस वक्त वो तो डर उसकी जिंदगी के अंदर था। रोमी लौंडी से वो डर गया जब उसने कहा कि ये भी मसीह के साथ था, हालांकि मसीह का इनकार भी कर दिया। फिर माफी मांगकर बहाल हुआ, और जब बहाल हो गया तो फिर मसा के इम्तिहान के अंदर खुदा ने उसे इस्तेमाल किया और लिखा है कि खिदमत करने लगा। फिर लिखा हैकल के अंदर सामने एक लंगड़ा बैठा था, उसे उसने क्या की, शफा दी, और फिर खिदमत करने लगा। और फिर लिखा है कि रोमी इसराइल के अंदर उसने जब खिदमत की, लिखा है एक दफा रोमी हुकूमत ने उसे पकड़ भी लिया और फिर कैद खाना में डाल दिया। फिर लिखा फरिश्ते आकर उसे लिखा है कि उसने फरिश्तों में से ऊपर से रस्सी बांध कर नीचे आया, कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। तो एक ईमानदार बिलीवर खुदावंद की प्रोसेस करे, मसा के इम्तिहान में कामयाब हो, नापाकी के अंदर न रहे। एक ईमानदार बिलीवर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, यीशु के लहू से धुला हुआ है। आमीन। आखिरी बात जो है, यूहन्ना आरिफ लिखा 100 साल की उम्र में था, बूढ़ा शख्स था, लिखा पितमस के जजीरा के अंदर था। आमीन। अब मसा का इम्तिहान शुरू हो रहेगा, सुनिए। पितमस के जजीरा के अंदर उसने मकाशा की किताब लिखी, यूहन्ना आरिफ ने खुदा के साथ चल रहा था, लेकिन रूह कुदस उसे जंगल में ले गया। आमीन। यूहन्ना को भी ले गया, उसे कहा देख एक कस्बी औरत को जो पानियों पर बैठी हुई है, जो हैवान के ऊपर बैठी है। ये दुनिया है भाइयों, ये दुनिया है, दुनिया के बादशाह, दुनिया की हुकूमतें हैं। ये कस्बी जो है, इससे शो किया गया दुनिया के बादशाहों को।
नापाक लोगों को, नापाक बादशाहों को लिखा के हवान के ऊपर, शैतान के ऊपर बैठी हुई है। दुनिया की बादशाहियां, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की अशरत, ये यीशु मसीह को भी दिखाई उसने, दुनिया की बादशाहियां, लेकिन यूहन्ना को भी दिखाई। उसने कहा यूहन्ना देख, इन बादशाहों को मैं तबाह कर रहा हूं, दुनिया के अंदर तबाह कर दूंगा। और ये खुदावंद के कलाम में लिखा है दुनिया के बादशाहियां, जो दुनिया की बादशाह वो तबाह कर दी जाएंगी जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। बादशाह का बादशाह जब आएगा तो दुनिया की जो बादशाहियां होंगी, दुनिया की जो हुकूमतें हैं, वो सब निस्तो नबूद की जाएंगी। और फिर लिखा कि यीशु मसीह जो बादशाह का बादशाह है, उसकी बादशाही कायम रहेगी। 1000 साल बादशाही के अंदर वो बादशाह होगा, एक ही बादशाह होगा दुनिया के अंदर। वो कौन? बोलिए, यीशु मसीह। हालेलुया। जिसकी रान पर लिखा है बादशाह का बादशाह, यीशु बादशाह। हालेलुया। और फिर लिखा है अब्दियत के अंदर भी वो बादशाह होगा। इसलिए दुनिया की बादशाह तबाह हो जाएंगी। एक इसलिए ईमानदार बिलीवर दुनिया के अंदर जाने ना पाए, ऐसी शर्त के अंदर जिंदगी बसर ना करे, बल्कि खुदावंद के साथ चले। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आइए सब खड़े हो जाइए।